Hello students, my name is Hitesh Jain and we started chapter 4 electrical capacitance, and our today's topic is effect of dielectric in parallel plate capacitor. So in this topic we discuss about the effect of dielectric material. What is the dielectric material? Dielectric material is a non-conducting material or the insulator. So effect of dielectric material in the plates of capacitor. So we discuss this topic. We have a parallel plate capacitor, this one, and this is completely filled with the dielectric material. Dielectric material is just like is. And we discussed in our previous video that the dielectric material have the two types, polar dielectric and non-polar dielectric. In polar dielectric we discussed that the plus and minus are not coincidence with each other, but in non-polar dielectrics the plus and minus are coincidence with each other. So we take here a dielectric material in which we see here that the plate of capacitor having the plus and minus. When we fill the dielectric material in between them, then this plate gains the minus and this plate gains the plus due to the induction. पॉजिटिव की वजह से इस प्लेट पर नेगेटिव क्रिएट होगा और इस नेगेटिव की वजह से इस प्लेट पर पॉजिटिव क्रिएट होगा. किसकी वजह से? इंडक्शन की वजह से. अब हुआ क्या? हुआ यहाँ पर ये कि यहाँ पर ये जो मटेरियल थे ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है देन डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा. तो दिस इज द प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दिस वन okay. So now this dielectric material is filled in between the plates of capacitor. Here we see that the external electric field which created by these plates of capacitor in between the plates of capacitor is E. This is the external electric field we denoted by EO. EO is E out. Okay. And this is the induced electric field. Induced, why we say induced? Because this electric field created by due to the charge of these plates. So these are the induced electric field and direction of the induced electric field is this type, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो बोथ एक्सटर्नल एंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर. ओके. तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि जब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा. अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर मैं इसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहता हूँ, या फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था पोलराइजेशन. पोलराइजेशन में हमने पढ़ा था कि व्हेन वी पुट अ मटेरियल इनटू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफ इट बिकम्स चार्ज्ड देन इट इज़ कॉल्ड द पोलराइज्ड. तो यहाँ पर ये आपका जो मटेरियल है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इसे हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं. दैट मीन्स वी राइट एज ए EP. हम इसे EP से भी डिनोट कर सकते हैं. तो व्हेन वी इवेल्युएट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इक्वल्स टू EO माइनस EP. ओके. तो अगेन आई रिपीटेड, concentrate. Firstly we take a parallel plate capacitor. Now we fill a dielectric material in between them. Due to the induction, the negative charge created at one side and the positive charge created at another side in the form of molecules. The external electric field EO from positive to negative and the internal electric field which is called the induced electric field or the polarized electric field EP in opposite direction. So when we evaluate the resultant electric field, because it is a vector quantity and both are opposite to each other, so the resultant electric field E equals to EO minus EP. This is our resultant electric field. So here we know EO. If EO is the external electric field, then what is the value of the external electric field? तो अभी हमने इससे previous वीडियोस में जो देखा था कि जो सिंगल प्लेट होता है वो सिंगल प्लेट की वजह से जो आपका
कंडक्टिंग प्लेट होता है, उस कंडक्टिंग प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वी डिस्कस इन सेकंड चैप्टर, ओके। और ईपी की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, दिस इज द सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई कंडक्टिंग प्लेट्स है ना, और कंडक्टिंग प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कर रहा हूँ तो E तो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड EP हो जाएगा आपका सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा आपका E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा माइनस सिग्मा P बाय epsilon naught. This is the E. Okay. Now this is the equation of second. ठीक है. By the definition of अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो इन फॉर्म ऑफ मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैक्यूम। यानी मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स होता है, ये हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। तो हमारी जो E की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, दिस इज द EO अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। और EO क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, दिस इज द सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो दिस इज द इक्वेशन 3। तो अब यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं किस में, सेकंड और थर्ड से, तो जब सेकंड और थर्ड से हम वैल्यू पुट करते हैं तो बाय सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड देखते हैं अगर हम, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो दैट इज सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर, बिकॉज हियर एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट इज कैंसिल आउट विथ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लेस हो जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि when we fill the dielectric material inside the parallel plate, then the resultant electric field is always less. Why we say that? हम कैसा कह सकते हैं ये कि always less? क्योंकि यहाँ हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि आपका ये एक्सटर्नल है एंड ये आपका इंटरनल है, तो आप लेस कर रहे हो, आप उनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, और सब्सट्रैक्ट करने पर हमेशा वैल्यू कम होती है, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, लेस होगी। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपको यही रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटेड दैट व्हेन यू फिल द डाइलेक्ट्रिक देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स लेस कंपेयर टू द प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो अब हम जब आगे चलते हैं, इसको हम चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वन सिग्मा इक्वल्स टू या सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर, देन हियर सिग्मा हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर, दिस इज द सिग्मा पी, ओके। अब हियर दिस इक्वेशन डिनोटेड बाय द फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, द पोलराइजेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पोलराइजेशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो P इक्वल्स टू जाई ई, दिस वन, ओके। और E की वैल्यू क्या है आपके पास में, E की वैल्यू है आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू है आपके पास, ओके। तो यहाँ से P क्या है, P इज द पोलराइजेशन वेक्टर, एंड पोलराइजेशन वेक्टर से रिलेटेड कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझिएगा इस चीज़ को, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर होता है किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो कितना पोलराइज्ड हो रहा है, उस पर कितना चार्ज आ रहा है। तो अगर वो चार्ज पर यूनिट एरिया में काउंट कर देता हूँ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाता है, दैट मीन्स P किसके इक्वल हो जाता है यहाँ पर आकर, सिग्मा P के। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ तो सिग्मा P की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर,
तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पुट इसको वैल्यू को करूँगा तो जाई ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। देन सिग्मा से आपका सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका जाई ई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। इसको और सॉल्व कर लें हम चाहें तो दिस इज द एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो इस एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली वी हैव जाई ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट को उधर मल्टीप्लाई कर दो, जाई ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 दिस वन। तो ये आपकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आ गई। तो यानी ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन शो कर रही है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपको दो चीज़ें वापस रिपीट कर रहा हूँ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि व्हेन वी फिल द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स डिक्रीजेस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, व्हेन यू फिल द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो जैसे जैसे आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप फिल होता जाएगा वैसे वैसे जो आपकी इंटेंसिटी है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम उतना ही कम होती हुई चली जाएगी। तो दिस इज द योर टॉपिक। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड टॉपिक। The second topic is capacitance of a parallel plate capacitor when it is completely filled with डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है योर अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। यहाँ पर आपको सिंपल है कि एक कैपेसिटर गिवन है, वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जस्ट लाइक this is the parallel plate capacitor and this parallel plate capacitor are completely filled with the dielectric material। इसके बीच में यहाँ पर ये complete क्या भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल completely filled है this one। और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है एप्सिलॉन आर। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। तो मुझे इस कंडीशन में अब कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था तो द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये हमने वहाँ पर इवेल्युएट किया था फॉर द वैक्यूम। अब वैक्यूम के प्लेस पे यहाँ मेरे पास कंप्लीटली फिल्ड प्लेट्स दी हुई हैं जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि दिस प्लेट बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस प्लेट बिकम्स नेगेटिव। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन दैम इज E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, बट here we see that the dielectric material are filled in between the plate and this its dielectric constant is epsilon r। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक चीज़ और आ जाएगी, दिस इज द एप्सिलॉन r। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ E। ओके, नाउ सिग्मा, व्हाट इज द सिग्मा? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी? सिंस सिग्मा इक्वल्स टू Q by A, this is the surface charge density. Put the value of surface charge density, then Q by epsilon naught epsilon R A. This is the electric field value when we fill the parallel plate capacitor completely with dielectric material. Okay, now we know that V equals to ED। ये कहाँ से आया? We know the unit of the electric field intensity। याद कीजिए चैप्टर 1, यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 यूनिट्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर
न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट इज द पोटेंशियल एंड मीटर इज द डिस्टेंस v/d। तो ये किसकी यूनिट है? E की। तो अगर मैं यहाँ पर v/d करता हूँ तो v इक्वल्स क्या हो जाएगा? ED। तो मैंने वहीं से ये फॉर्मूला जनरेट किया है। वी नो दैट v इक्वल्स ED एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? E इज द Q बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RAD। दिस इज द V। देखिए जहाँ भी कैपेसिटेंस निकालना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नोटेड इट कि व्हेन यू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इन एनी केस, तो फर्स्टली यू शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले आपको प्लेटों के बीच का पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड व्हेन यू फाइंड द पोटेंशियल देन यू इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। तो हियर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। तो नाउ इट्स वेरी इजी फॉर अस इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। तो हियर C equals to Q by V. Then Q, what is the value of V? V is Q by epsilon naught epsilon RAD. This is Q2, Q cancel. Then C, यहाँ चाहें तो हम M लगा सकते हैं क्योंकि ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो C M equals to epsilon naught epsilon R A by D. ओके अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है आपका सिंपल कैपेसिटेंस। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ एप्सिलॉन आर सी, दिस वन। ओके तो ये आपका यहाँ से मीडियम के लिए कैपेसिटेंस आ गया। तो हम यहाँ पर हम कंक्लूड निकाल सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का फॉर द मीडियम इज एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ वैक्यूम। तो वैक्यूम के कैपेसिटेंस का वो एप्सिलॉन आर टाइम्स होता है। कब? जब आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंप्लीटली फिलअप कर दिया है। ओके तो ये क्लियर होगा आपके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से लेते हैं हम। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड। अब मैं कंप्लीटली फिल्ड नहीं ले रहा हूँ, बहुत सिंपल, सबका एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हम कंप्लीटली फिल्ड नहीं करेंगे, हम पार्शियली फिल्ड करेंगे। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी डिस्टेंस d है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके यहाँ पर हमने ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दिया, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो नाउ वी टेक इट t, ठीक है, थिकनेस t हो गई। अब अगर ये टोटल डिस्टेंस d है तो ये प्लेटों के बीच में किसकी डिस्टेंस है? ये वैक्यूम, ये एयर की डिस्टेंस है। यानी अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हटा देता हूँ तो इसका मतलब इस d डिस्टेंस के बीच में एयर फिलअप है। और जैसे ही मैंने इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया तो अब एयर की विड्थ कितनी रह गई? d माइनस टी। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो एयर की विड्थ कितनी हो गई? d माइनस टी। ओके नाउ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहा? एप्सिलॉन आर। ओके तो अब हियर वी सी दैट व्हेन वी टेक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड वी फिल्ड इट विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल partially, then we have the distance, the width of the air is d minus t and the width of the dielectric material is t. तो अब जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो मेरे लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंडीशंस में निकलेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा निकलेगा ड्यू टू फॉर द एयर या फॉर वैक्यूम। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। ओके तो नाउ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा को हम Q बाय A लिखेंगे, तो दिस इज द एप्सिलॉन नॉट A। नाउ द सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो E2 इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर दे रहा है मेरे को, तो सिग्मा की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, दिस इज द Q बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ओके तो हेयर वी सी दैट व्हेन, मतलब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर फिलअप कर दिया तो आपके पास में टू कंडीशंस यहाँ पर अराइज हो गई। एक कंडीशन तो वो जिसमें अभी भी एयर है और एक कंडीशन वो जहाँ पर अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो व्हेन यू टेक द कंडीशन ऑफ एयर देन योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 इक्वल्स टू दिस
and when you take the condition of dielectric material, then your electric field is Q by epsilon naught epsilon r A. Okay, now we evaluate the potential, very important, क्योंकि मैं हर बार बोल रहा हूँ कि जब भी कैपेसिटेंस निकालना है तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस फॉर इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. ओके, तो यहाँ पर जब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, तो V इक्वल्स टू, सबसे पहले E1 की बात कर रहा हूँ मैं. E1 एयर का है और डिस्टेंस कितनी है एयर की? एयर की डिस्टेंस कितनी बची है? d माइनस टी. तो E1 d माइनस टी, ये कहाँ से आ रहा है फॉर्मूला? ध्यान रखिएगा, V इक्वल्स टू ED, ये इस जगह से फॉर्मूला आ रहा है. तो E1 और d माइनस टी प्लस E2, this is the electric field. Okay, now the thickness of the dielectric material, thickness of dielectric material is T. So now this one is T. Got it? So now here E1 and E2 are the electric field for vacuum and the for dielectric material. So now we put the value of E1 and E2 here. So E1 value is Q by epsilon naught A plus E2 Q by epsilon naught epsilon r A T. Okay, so now when we solve it, we see here that in this equation we take common Q by epsilon naught A, then we have d minus t plus t by epsilon r. This is the value of the potential between the plates. So when we evaluate the value of the potential, then it is simple for us evaluating the value of capacitance. So now the capacitance is C equals Q by V, then Q by epsilon naught A d minus t plus t by epsilon r. Okay, so now C equals to epsilon naught A d minus t plus t by epsilon r. So now this is the capacitance when we take a dielectric material which is partially filled inside the capacitor of plate. Okay, इसको चाहे तो हम और सॉल्व भी कर सकते हैं. तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसको इस तरह से epsilon naught A, now this is d minus t plus t by epsilon r, then epsilon naught A d minus t कॉमन अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन r. ये इस तरह की कंडीशन हमारे सामने C की यहाँ पर निकल के आ जाएगी. तो इट इज़ द जो इक्वेशन ये आया है आपका, तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन शो कर रहा है आपके कैपेसिटेंस को व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर पार्शियली फिल्ड इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं. स्पेशल केसेस के अंदर क्या क्या है? हमने कहा कि अगर मान लीजिए ये प्लेट कंप्लीटली फिल्ड है, वापस उसी पे आते हैं, अगर ये प्लेट कंप्लीटली फिलअप है किससे? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, तो ये टी विड्थ डी के इक्वल हो जाएगी, तभी तो फिल करेगी इसको. तो इस कंडीशन में फर्स्ट केस जो है आपका डी इक्वल्स क्या हो जाएगा? टी. अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो जैसे ही डी इक्वल्स टी पुट करोगे तो टी से टी कैंसिल, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे 0. ठीक है, टी की जगह डी रखा तो 0 और यहाँ डी हो गया, तो ये क्या आ गया तुम्हारा? C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी. दिस ये वही कंडीशन आ गई आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन जो कंप्लीटली फिल्ड के लिए थी. ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं सिर्फ एयर की कि भाई हमारे पास तो एयर है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ही नहीं, तो अगर एयर है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, दैट मीन्स एप्सिलॉन आर इक्वल 0. और एप्सिलॉन आर अगर 0 हो गया तो फिर उस कंडीशन में ना तो आपके पास थिकनेस है ना आपके पास और कोई चीज़ है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. तो C इक्वल्स क्या रहा एयर के लिए? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यानी सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया. ओके, थर्ड वन कहता है कि अगर आपके पास में कोई मेटल प्लेट है जिसकी थिकनेस T है, आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह पर कोई मेटल प्लेट ले ली और उसकी थिकनेस क्या है? T, तो मेटल प्लेट के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट. ये हम लोगों ने लिखा है, तो इस एप्सिलॉन आर की जगह पर क्या पुट कर दोगे? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट पुट होते ही ये टर्म 0 हो गई, क्योंकि 1 बाई इनफाइनाइट 0 होता है. तो अब क्या बचा तुम्हारे पास में? C इक्वल्स टू
एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। तो ये 3 केसेस हैं अलग अलग जो हम यहाँ पर इस वाले कंडीशन में इवेल्युएट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो 2 केसेस हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट केस हमने पढ़ा व्हेन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with completely dielectric material, and the second case when the parallel plate capacitor filled with partially dielectric material, and the third, now the last case of the parallel plate capacitor is capacitance of parallel plate capacitor filled with different dielectrics of different thickness। ओके, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि अब हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर अलग अलग थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स फिलअप है। तो फर्स्टली वी टेक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये थिकनेस T1, ये T2, ये T3, ये T4, दिस वन, एंड द एयर थिकनेस इज D। ठीक है, तो अगर आपने डिफरेंट थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप कर दिए है तो आपकी एयर का थिकनेस कितना बचा, ये सोचने वाली बात है। तो आप क्या करो, इन सारे थिकनेस को ऐड कर दो और उसको एयर के डिस्टेंस में से लेस कर दो, तो आपका एयर का थिकनेस कितना रहा, D माइनस T1, T2, T3, T4 और जहाँ तक जा रहा है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द एयर। गॉट इट? ओके, तो अब यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का वही कॉन्सेप्ट है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा एयर के लिए और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। तो वहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं, सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट में उठा रहा हूँ डायरेक्ट पोटेंशियल से, क्योंकि थ्योरी में कुछ भी नहीं है। थ्योरी में आप डायरेक्ट लिखेंगे कि वी हैव द 2 पैरेलल प्लेट्स विच इज फिल्ड विद द डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। द थिकनेस ऑफ द एयर बिकम्स D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ओके, तो नाउ द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इज, तो V इक्वल्स टू, अब 2 पोटेंशियल निकलेंगे, सॉरी 2 पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल तो एक ही निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 2 काउंट होंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो काउंट होगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड काउंटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर, तो E नॉट D माइनस T1, T2, T3, T4, दिस वन। ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होगा आपका किसकी वजह से, मीडियम की वजह से। तो जब हम मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट वन E1 T1, E2 T2, E3 T3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं तो E नॉट D माइनस T1, T2, T3, T4, ओके, प्लस E1 को हम क्या लिखेंगे, E नॉट बाय एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। E नॉट हम कॉमन ले लें, ये कैसे आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मीडियम, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मीडियम, बहुत सिंपल सा है, वैक्यूम का 1 बाय एप्सिलॉन R टाइम, तो वैक्यूम का 1 बाय एप्सिलॉन R टाइम कर दिया मैंने। अब मैंने E नॉट टोटल में से कॉमन ले लिया, तो D माइनस this one plus and so on।
नाउ ई नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए। प्लस एंड सो ऑन। ओके, तो नाउ दिस इज द पोटेंशियल। तो इवेल्युएट द कैपेसिटेंस, सिंपल, C इक्वल्स टू Q by V। तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ V, this one epsilon naught A, okay। Okay, so this is the capacitance of a parallel plate capacitor when we filled it with the different types of डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब मैंने आपसे ये कहा कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम इतना भर देते हैं कि ये पूरा ही फिलअप हो जाता है, पूरी प्लेट्स फिलअप हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि D किसके इक्वल हो गया? T1, T2, T3, T4 के, मतलब ये पूरा का पूरा इक्वल हो गया, ये सारे मिलके D के इक्वल हो गए। तो जब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इसकी जगह D रखेंगे, तो ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ये टर्म जीरो होते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 बाय एप्सिलॉन R1, T2 बाय एप्सिलॉन R2 एंड Tn बाय एप्सिलॉन Rn। ये आपके पास में निकल के यहाँ आ जाएगा। ओके, तो नाउ अब स्पेशल केसेस की जब हम बात करते हैं, तो स्पेशल केसेस में हम ये कहते हैं कि भाई हमने N टाइप की स्लैब्स यहाँ प्लेट्स के बीच में रख दी। कितनी स्लैब्स रखी? N टाइप की। N टाइप की स्लैब्स को अगर आप प्लेट्स के बीच में रखते जाओगे तो थिकनेस उतने ही टाइम कम होती जाएगी एयर की। भाई जैसे ये प्लेट है, अब मैंने यहाँ 1 प्लेट रखी तो थिकनेस कितनी कम हो गई? D/1, 2 रखी D/2, D/3, D/4, N रखी D/N। तो अगर मैं कह रहा हूँ मैंने N स्लैब्स रखी तो T1 इक्वल्स, T2 इक्वल्स, T3 इक्वल्स क्या हो गया? D/N। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जब ये वैल्यू आएगी T1, T2, T3 तो इनकी जगह D/N रख सकता हूँ। तो D/N को मैं कॉमन ले लूँगा और कॉमन लेके मेरी वैल्यू आ जाएगी 1 बाय एप्सिलॉन R1 प्लस 1 बाय एप्सिलॉन R2 प्लस 1 बाय एप्सिलॉन R3, दिस वन। ओके, सेकंड केस आपका ये कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पर सिर्फ 2 स्लैब्स ली जिनकी थिकनेस है हमारे पास में इक्वल थिकनेस की 2 स्लैब्स है, यानी दोनों की थिकनेस इक्वल है, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है, जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला है एप्सिलॉन नॉट ए D/N 1 बाय एप्सिलॉन R1 प्लस 1 बाय एप्सिलॉन 2 है, तो बस ये 2 ही रखेंगे, आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है। और N की जगह कितनी प्लेट्स है? 2, तो ये 2 कहाँ चले गया? ऊपर, तो 2 ऊपर जाते 2 एप्सिलॉन नॉट ए D 1 बाय एप्सिलॉन R1 प्लस 1 बाय एप्सिलॉन R2। इसको चाहो तो और सॉल्व कर दो, तो D एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2, ये एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 ऊपर चला जाएगा अपॉन D दिस। तो दिस इज द कैपेसिटेंस। तो बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में कहीं से कहीं तक कोई भी थिंग ऐसी नहीं है जो मतलब कोई टिपिकल हो, सिर्फ हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स को काम में लेना है। यहाँ पर हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ में लेना है, थोड़ा सोचना है और इजीली हम लोग इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।